اقوام متحدہ کے ماہرین کی پاکستان بھارت جنگ پر چشم کشا رپورٹ جاری۔ پاکستان کے موقف اور بیانیے کی بھرپور تصدیق۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا۔ بھارت کا طرز عمل اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی قرار۔ پہلگام حملے میں پاکستان کی شمولیت سے متعلق بھی بھارت شواہد پیش نہ کر سکا۔ صدر آصف علی زرداری کا رپورٹ کا خیر مقدم۔ دوسرے ملکوں میں بھارتی مداخلت اور قتل و غارت سے متعلق رپورٹس خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس قوم کے اسپیشل بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر ان کو معاشرے میں کھڑا ہونے کا ان کو ہم اس کے قابل بنائیں اور جدید ٹیکنالوجی اس سے آراستہ پیراستہ کریں۔ خصوصی بچے قوم کا قیمتی اثاثہ، ریاست ان کی تعلیم، تربیت اور باعزت خود مختاری یقینی بنائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں آٹزم اور دیگر خصوصی بچوں کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ سینٹر آف ایکسیلنس کو 2 کے بجائے 1 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ خصوصی بچوں کی جانب سے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ، ٹیبلوز اور دیگر پروگرام پیش۔ بچوں نے قومی ترانہ خصوصی انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم نے بچوں کی پرفارمنس کو سراہا۔ یہ کارکردگی کسی بھی نارمل بچے سے کم نہیں بلکہ اس سے بہتر تھی۔ خصوصی بچوں کی شاندار پرفارمنس غیر معمولی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ وزیر اعظم وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کی کارکردگی پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ انسداد اسمگلنگ اقدامات پر اظہار اطمینان۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے معیشت کو اربوں روپے کا فائدہ اور محصولات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات میں مزید تیزی لائی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ بھارت سنتھاس معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو منصوبے معاہدے کی تکنیکی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جانب سے رواں برس 2 مرتبہ بغیر پیشگی اطلاع پانی چھوڑنے سے دریائے چناب کے پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی تبدیلی آئی۔ یہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھارتی آبی جارحیت پر غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ۔ عالمی برادری سے سنتھاس معاہدے کی مکمل بحالی کے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی سنتھاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی بھرپور تصدیق۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان میں کروڑوں افراد کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق اس فیصلے سے براہ راست زد میں آتے ہیں۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا ہتھیار نہیں بنایا جا سکتا۔ تنازعات کا حل معاہدے میں درج تصفیے کے طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے۔ ماہرین کی خصوصی رپورٹ۔ بھارت کا پاکستان مخالف جھوٹ بے نقاب۔ اقوام متحدہ نے مودی سرکار کو 5 سوالات پر مشتمل مراسلہ بھیجا تھا۔ بھارت سے 60 دن کے اندر سوال نامے کا جواب طلب کیا گیا۔ بھارت نے ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، جس کے بعد اقوام متحدہ نے یہ خصوصی رپورٹ جاری کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ٹم کین کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر زور۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم کا بونڈائی بیچ، سڈنی میں دہشت گردی کے واقعے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त की मुलाकात। सकाफ़त के शोबे में ताउन पर मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जारी पाकिस्तान ताजिकिस्तान सकाफ़ती हफ्ते की अहमियत को उजागर किया। ताजिक वज़ीर ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और सकाफ़ती सफारतकारी के अज़्म को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी कल 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा करेंगे। सदर ममलकत इराक के हम मनसब की दावत पर दौरा कर रहे हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी इराक की आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। दो तरफा ताउन, तजारत, तवानाई, सरमायाकारी, इलाकाई और आलमी उमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। उस्मान हादी सिर्फ मुल्क के लिए बिला तकल्लुफ इंडिया के खिलाफ आवाज उठाती रही। इंडियन सब पॉलिसी और बांग्लादेश के इंटरनल आर्म फोर्स से लेके फौजी तक जिनके साथ इंडियन कनेक्शन था, उसके खिलाफ हमेशा वो आवाज उठाते रहे थे। इंडियन जो हिपोक्रेसी और डोमिनेशन है, इससे बांग्लादेश हमेशा आजाद रहे। बांग्लादेश जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बांग्लादेश के तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी की कातिलाना हमले में शहादत। जस्से खाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दिया गया। मुल्क भर में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हादी स्क्वायर शाहबाग में मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज अब भी जारी। मुजाहिरीन की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नरेंद्र मोदी गुजरात का कस्साब करार। मोदी इंसानियत के खिलाफ जराइम का जिम्मेदार है। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में उस्मान हादी ने अहम किरदार अदा किया था। बांग्लादेश में तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल में कलरम छात्रा लीग के रहनुमा फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान मरकजी मुलजिम करार। फैसल करीम मसूद वाक़े के बाद भारत फरार हो गया। उस्मान हादी 12 दिसंबर को सफ़र के दौरान फायरिंग का निशाना बने थे। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस का उस्मान हादी की शहादत पर कल यौम शौक़ का ऐलान। जदीद पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़। पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। खुले मैन होल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उबलते नाले और तमाम अफसरान की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। चेयरमैन सीएम कंप्लेंट सेल की ब्रीफिंग। 9 मई 2023 को क्लब चौक GOR गेट पर हमले के मुकदमे में यास्मीन राशिद, मियां महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी इस मुकदमे में भी बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाह अदालत में पेश। दौरान ट्रायल 4 मुलजिम इश्तहारी करार दिए गए। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। बेपनाह चैलेंजेस से इबारत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। तलबा को नज़्म-ओ-ज़ब्त, एहतराम और इस्तकामत अपनाने की तलकीन करती हूँ। बख्तावर कैडेट कॉलेज का मयारी तालीम के फ़रोग में किरदार काबिल सताइश है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए तालिबात में तकरीब से खिताब। ऑटिज़म से मुतासरा बच्चे गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं। वजारत तालीम खुसूसी बच्चों के लिए पॉलिसी साजी, तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए मुसलसल इक़दाम जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी 22 साल से ऑटिज़म और न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की खिदमत में मसरूफ़ हूँ। नॉन प्रॉफिट औसत स्कूल में खुसूसी बच्चों को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तालीम, थेरेपी और स्किल डेवलपमेंट की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ऑटिज़म एक्सपर्ट आयशा हारून का तकरीब से खिताब। खुश्क सर्दी और खुशसाली से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। कल शाम से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर
और खित्ता पोठोहार में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मियांवाली, भक्कर, नूरपुर थल और लिया में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, खानपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान और गिरदोनवाह में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध का इम्कान। दुबई समेत मुत्तहदा अरब अमारात की रियासतों में शदीद बारिशों के बाइस गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक मुअत्तल, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर, मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम नाफिज। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद, परवाजें मनसूख। सऊदी अरब और कतर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुतवक्के बर्फबारी। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में तारीख की पहली बर्फबारी से रहायशी हैरान। मुतासिर भारतीय हुक्मरान मुसलमान अक़लियत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। हिंदू इंतहा पसंद योगी हुकूमत के इत्तेहादी वजीर संजय निषाद की बिहार के वजीर आला की मुसलमान खातून डॉक्टर के साथ मज़मूम हरकत की हिमायत। संजय निषाद के खिलाफ औरत की तज़लील करने पर FIR दर्ज करने की दरख्वास्त देने वाली मुसलमान खातून रहनुमा सुमैया राना को लखनऊ पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का मुहासिर और घरों पर छापों का सिलसिला तेज। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। NIA ने दिल्ली धमाके के झूठे मुकदमे में एक और कश्मीरी नौजवान यासिर अहमद डार को शोपियां से गिरफ्तार कर लिया। मीरवाइज उमर फारूक की बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब सरेआम उतारने की मजम्मत। बिहार के वज़ीर आला से नामुनासिब रवैये पर फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा। महबूबा मुफ्ती का पुलवामा में भारतीय फौज को जरखेज़ अराज़ी की मुंतकली पर इजहार तशवीश। Oh, that's a gem of a delivery. अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप इतवार को फाइनल में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। बारिश से मुतासरा मैच 27 ओवर्स तक महदूद। बांग्लादेश 26.3 ओवर्स में 121 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने हदफ 16.3 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स और PTV नेशनल पर बराह रास्त। Up in the air, third man's coming around, that's another one. Oh, wow. बिग बैश लीग में चौकों और छक्कों के बारिश सबसे बड़े हदफ के कामयाबी से ताकुब का रिकॉर्ड बन गया। ब्रिस्बेन हिट की पर्थ स्कॉचर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त। ब्रिस्बेन हिट ने 258 रन का हदफ एक गेंद कब ही हासिल कर लिया। जैक वॉल्डरमॉट और मैट रमेशा की सेंचुरियां। बिग बैश लीग PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Bowls in, Stark! Oh, the frustration for Stark. एडिलेड में एशियन सीरीज का तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की 356 रन की बर्तरी के साथ गिरफ्त मजबूत। तीसरे रोज दूसरे इनिंग्स में 4 विकेटों पर 271 रन बना लिए। ट्रेविस हेड 142 रन पर नॉट आउट। एलेक्स कैरी भी 52 रन पर नाकाबिले शिकस्त। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 371 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 286 रन बना सकी। एशियन सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला। और पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। रजिस्ट्रेशन अगले साल 20 जनवरी तक जारी रहेगी। PSL 26 मार्च से 3 मई तक शेड्यूल। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर।
ناظرین کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ تعلیم یافتہ نوجوان مگر بے روزگار، یہ پاکستان کا وہ درد ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے دل پر لیا اور ہزاروں نوجوانوں کو ہنر سے روزگار کا راستہ دکھایا۔ اسی سلسلے کا ایک اور اقدام انڈسٹری لیڈ ٹریننگ پروگرام کے تحت نیفڈیک اور نیٹ سول انسٹیٹیوٹ آف اے آئی کے باہمی اشتراک سے اے آئی اینڈ مشین لرننگ، ڈیٹا سائنسز اور سائبر سیکیورٹی کی جدید ٹیکنالوجیز میں ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں، جس سے نوجوانوں کو یقینی نوکریاں ملیں گی۔ نیٹ سول انسٹیٹیوٹ آف اے آئی میں نوجوانوں کے لیے عالمی معیار کی تربیت اور روزگار کے پرکشش مواقع۔ کورسز کا دورانیہ 3 ماہ، عمر کی حد 18 سے 40 سال۔ مزید تفصیلات کے لیے نیفڈیک کی ویب سائٹ www.nafdac.gov.pk وزٹ کریں۔ www.nsis.nafdac.gov.pk پر آن لائن اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 10 جنوری 2026۔ نیفڈیک، درست ہر وقت بر وقت۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آٹزم اور دیگر خصوصی بچوں کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم کو اس منصوبے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سینٹر آف ایکسیلنس کو 2 سال کے بجائے 1 سال کے اندر مکمل کیا جائے۔ تفصیل آغا مسعود خالد سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں آٹزم اور دیگر خصوصی بچوں کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سینٹر آف ایکسیلنس کو 2 سال کی مدت کی بجائے 1 سال میں مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آٹزم اور دیگر خصوصی بچے قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ ان اسپیشل بچوں اور بچیوں کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر ان کو معاشرے میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا ان کو ہم اس کے قابل بنائیں۔ جدید آلات اور جدید ٹیکنالوجی ہم ان بچوں کو اور بچیوں کو اس سے آراستہ پیراستہ کریں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ وزارت تعلیم خصوصی بچوں کے لیے پالیسی سازی اور جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل اقدامات جاری رکھے گی۔ ایک قومی ارادے کو قومی ادارے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ اس قومی ارادے کے ساتھ مل کر ایک نئے مشن کا آغاز کرے گا۔ یہ مشن آپ کی سربراہی میں قوم کو ایک نئی شان، نئی آن اور ایک نئے عہد سے متعارف کرائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آٹزم ایکسپرٹ عائشہ ہارون نے کہا کہ 2009 میں اوائسس اسکول کی بنیاد رکھی، جو ایک نان پروفٹ سٹرکچرڈ ڈے اسکول ہے جس میں بین الاقوامی معیار کے مطابق خصوصی بچوں کو تعلیم، تھراپی اور اسکل ڈیولپمنٹ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اوائسس میں ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو تمام سہولیات میسر ہیں، جیسے ایکیڈیمکس، سیلف ہیلپ سکلز، اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپی، آکیوپیشنل تھیراپی، آرٹ تھیراپی، پلے تھیراپی، سینسری انٹیگریشن، سینسری گارڈن وغیرہ، اور ہم ایک ڈیٹیل اسکریننگ اور اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے تقریب میں خصوصی بچوں کی جانب سے پیش کی گئی شاندار پرفارمنس اور ٹیبلوز کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کارکردگی کسی بھی نارمل بچے سے کم نہیں بلکہ اس سے بہتر تھی، جو ان بچوں کی غیر معمولی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ ایک چڑیا بولی چن 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 چن، اللہ 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 اللہ۔ تقریب کے آغاز میں آٹزم کے خصوصی بچوں نے قومی ترانے میں شرکت کر کے ملک سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔
वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमत खसूसी बच्चों को जदीद तालीम, तरबियती सहूलियात और टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रही है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में FBI की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स चोरी और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। स्मगलिंग रोकने के लिए कामयाब कार्रवाइयों को सराहते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सालाना अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर कमी काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों में FPR के साथ मुकम्मल ताउन करें। इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त और दीगर उमूर के बारे में ब्रीफ किया गया। शुरका को बताया गया कि राहगुज़र ऐप के जरिए पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप्स की रजिस्ट्रेशन की जा चुकी। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ज़िले इंतज़ामिया को नए पेट्रोलियम एक्ट के तहत गैर कानूनी मशीनरी जब्त करने का इख्तियार दे दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने 7 मई 2025 को भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले और सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक करती है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी करते हुए भारत की यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात का इजहार किया है। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारतीय हमलों में पाकिस्तान के शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई और मुतअद्दिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की मजम्मत की और सलामती कौंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। भारत ये साबित करने के लिए काबिल एतबार शवाहिद पेश नहीं कर सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए कहा कि भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की भरपूर तस्दीक करते हुए सिंतास मुआहदे को हेल्ड इन अबेंस करने पर भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश जाहिर की। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में बताया गया कि पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हकूक को मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक इस फैसले से बराह रास्त जद में आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पानी को सियासी या मौशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर सकता है। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर मुआहदे के तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार देते हुए कहा गया कि तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फिया के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की तरफ से मुबैना सरहद पार दहशत गर्दी के इल्जामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाकर पेश करना कानूनी तौर पर गैर मुतल्लिक करार दिया गया है। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास मुआहदे में बिगाड़ की निशानदेही करते हुए बताया गया कि इंडस कमीशन के सालाना इजलास 2022 के बाद नहीं हुए। भारत ने सालसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने भारत के झूठ को बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को एक सवालनामा अरसाल किया, जिसके मुताबिक क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और इस पर माफी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हकूक और बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? और ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़ा के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़े खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में मुतालबा किया गया कि भारत इन तमाम सवालों के जवाब 60 दिन के अंदर फराहम करे, मगर भारत ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी की। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन की भारती कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है कि बैनुल-अक़वामी सरहद के पार से यकतरफ़ा ताकत का इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन पामाली है। उन्होंने कहा कि मई में शहरियों की हलाकतों, पाकिस्तान के मजहबी मकामात को पहुँचने वाले नुकसान और भारत की जानिब से कशीदगी में इजाफे के बढ़ते हुए खतरे से मुतालिक नताइज नहायत तशवीशनाक हैं। सदर मुमलिकत ने भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली और जारहाना भारतीय रवैये से मुतालिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम का बुनियादी सतून है। तयशुदा तनाज़ात के हल के तरीक़ेकार को नज़रअंदाज करना और पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि कानून और मुकालमे के बजाय जबर, धमकी, ताकत और तशद्दुद की पॉलिसी भारत का वतीरा है। इंसानी हुकूक माहिरीन की रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल पर बढ़ते हुए आलमी खदशात, दीगर मुल्कों में भारतीय मुदाखलत और कत्ल गारत के खतरनाक रुझान की निशानदेही करती है। सदर मुमलिकत ने कहा रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत तवील अरसे से अपनी अक़लियतों को दीवार से लगाए हुए है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ ऐसे तर्ज अमल को बरकरार रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की जानिब से भारत के इलाकाई तर्ज अमल पर जांच पड़ताल का खैर मकदम किया। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आलमी क़वानीन के एहतराम के आज़म का इयादा करते हुए कहा कि वतन अज़ीज़ की खुद मुख्तारी अवामी हुकूक के दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इन इक़दामात से पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की ज़िंदगियों समेत जनूबी एशिया के अमन को संगीन खतरात लाहिक हैं। तफसील हुसैन रज़ा से। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफ़ीरों को भारतीय आबी जारहियत के बारे में ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का अहम ज़रिया है। भारतीय वज़ीर दाखिला का मुआहिदा बहाल न करने और पानी का रुख मोड़ने का ऐलान तशवीशनाक है। Belligerent statements keep coming from the Indian leadership clearly demonstrate Indian intentions and designs to weaponize water aimed at inflicting harm on Pakistan and its people. We have repeatedly brought this situation to the attention of the UN Security Council. I have similarly written to the UN Secretary General as well as UN President. Let me reassure you that Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. इसहाक़ डार ने कहा कि भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान को सैलाब और खुश्कसाली के खतरात से दो चार होना पड़ा। ये इक़दामात इंसानी बहरान को जन्म देने की सलाहियत रखते हैं। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। The ongoing water manipulation by India gravely contravenes international human rights and international humanitarian law while hindering progress on sustainable development goals on poverty and hunger. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि भारत किशन गंगा और रटले डैम जैसे मंसूबों के जरिए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली और इस पर अमल दरामद के लिए फौरी और मौसर किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। हुसैन रज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का मुश्तरका वर्सा आवाम के दरमियान रवाबित और सकाफती ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए मजबूत बुनियाद फ्राहम करता है। इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफत सतारियोन मुतालजोन ज़ादा से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया और सकाफत के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद में जारी पाकिस्तान ताजिकिस्तान सकाफती हफ्ते की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह के तबादले बाहमी अफ़हाम तफ़हीम को फ़रोग़ देंगे और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अवाम के दरमियान दोस्ती मजीद मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के बाहमी फ़ायदे के लिए ताजिकिस्तान के साथ तिजारत, राबते, तवानाई और ज़काफ़त समेत कसीर जहती ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इयादा किया। उन्होंने सदर इमाम अली रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि वो अगले साल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ताजिक वज़ीर सकाफत ने वज़ीर-ए-आज़म को सदर इमाम अली रहमान की नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। ताजिक वज़ीर ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और सकाफती सफारतकारी के आज़म को सराहा। उन्होंने मुश्तरका सकाफती प्रोग्राम बशमूल फनकारों के तबादले, त्यौहारों और नुमाइशों को बढ़ाने में ताजिकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइव स्टॉक के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने खानकनी और मादनियात के शोबे में ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग मनसूबा पाकिस्तान में खानकनी के शोबे में बेपनाह सलाहियत की रोशन मिसाल है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्रिकेट के लिए दोनों अक़वाम के मुश्तरका जज्बे समेत पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मजबूत रवाबित और सकाफती रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की गनाह कदर खदमात को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, इस नासुर के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलिया की क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने टेमकिन को बतौर हाई कमिश्नर तकर्रुरी पर मुबारकबाद देते हुए इस एतमाद का इज़हार किया कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन अब बनेंगी खुद मुख्तार, नए अज़्म से, हुनर की दौलत से। हुकूमत पाकिस्तान का खुसूसी इक़दाम प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डोमेस्टिक वर्कर्स स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज नेफ्टैक वजारत ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के इश्तराक से पेश कर रहा है। ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए बेहतरीन मौक़े जो ख़वातीन को फराहम करेंगे हाउस होल्ड मेड, एल्डरली केयर गिवर और चाइल्ड केयर वर्कर्स के हाई डिमांड स्किल्स में तरबियत, जिसके बाद ख़वातीन के लिए खलीजी मुल्कों में मुलाजमत के दरवाजे खुलेंगे। ख्वाहिशमंद इदारे कोर्सेज और लैब इक्विपमेंट की तफसीलात के लिए नेफ्टैक की वेबसाइट www.naftac.gov.pk विजिट करें। www.nsis.naftac.gov.pk पर ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2026। नेफ्टैक, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तहम जुनूब मगरबी बलूचिस्तान के अजला में तेज़ हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। पंजाब और बालाई सिंध के अजला में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ अजला में धुंध और स्मोक छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -5, गोपिस, बिगरोट और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद 6, लाहौर 9, कराची 13, पेशावर 7, कोयटा 4, मुल्तान 9, गिलगित 0, स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद 6 और श्रीनगर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने ऐवान सादर में मुलाकात की। सदर ममलकत ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है और दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत माली ताउन है। तहम सरमायाकारी, तवानाई, डिजिटल मईशत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। सदर ने नए तैनात होने वाले सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़्तिसादी और बुनियादी ढांचे के शोबों में मुसलसल मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर किया। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के करीबी बरादराना ताल्लुकात, बिलखुसूस सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, अवाम से अवाम के दरमियान रवाबित के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया गया। सदर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात मेरे ख़ानदान के लिए ख़ास अहमियत रखता है। यह ताल्लुक नस्लों पर मुहित है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक जारी रहा और आज भी कायम है। यह ज़ाती वाबस्तगी पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात की बुनियाद में गहरे एतमाद और महब्बत की अक्कास है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को खिराज तहसीन पेश किया और अमारात की तरक्की में इनके अहम किरदार को सराहते हुए कहा कि यह कम्यूनिटी दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है। सदर ममलकत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी दावत थी।
सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक सेक्रेटरी खारजा और D8 के नौमुंतखब सेक्रेटरी जनरल सुहेल महमूद ने ऐवान सदर में मुलाकात की है। सदर मुमलिकत ने सुहेल महमूद को अहम बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी और इसे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने D8 के साथ ताउन के पाकिस्तान के आज़म का इयादा करते हुए तंजीम के 10 साला रोड मैप के मौसर नफाज, बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और इदारा जाती इस्लाहात पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत IT सर्विसेज की बरामदात से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने IT बरामदात में इजाफे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT का शोबा मुस्तक़बिल की सनत का बुनियादी सतून है। हुकूमत IT इंडस्ट्री की तरक्की और बरामदात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़, अब कड़ी मॉनिटरिंग की आंख पंजाब के हर शहर पर होगी। पंजाब में खुले मैनहोल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान, रेडी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ और अफसरान की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मॉडर्न पंजाब में पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम की गई है, जिसके जरिए वज़ीर आला पंजाब के हर अफसर और एहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी भी चेक करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर डिवीज़न और अजला में भी CMIT के यूनिट्स कायम होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई 2023 को क्लब चौक GOR गेट जलाओ घेराव हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी, जबकि शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने इश्तहारी करार दिए गए 4 मुलजमान फारूक नजम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया। मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। मुलजमान ने GOR गेट पर नस्ब सिक्योरिटी कैमरे तोड़े, पुलिस के वायरलेस सेट और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया और पुलिस एहलकारों पर हमला किया। 9 मई के वाक़यात में सज़ाएँ अवाम को इश्ताल डराने और सरकारी अमलाक पर हमले के लिए उकसाने जैसे जराइम साबित होने पर दी गई हैं। लाहौर की मकामी क़यादत को दी गई सजाएं पसे पर्दा सहूलतकारों और इश्तियाल अंगेज़ क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का इशारा है। DG ISPR ने 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई का मुकदमा पूरी कौम का मुकदमा है। DG ISPR ने उम्मीद जाहिर की कि इसमें मुलविस तमाम सहूलतकारों और इश्तियाल अंगेज़ी में मुलविस अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे, सज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। पार्टी क़यादत को सजाएं रियासती रेट की बहाली की तरफ उठाया जाने वाला एक अहम कदम है। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक इस सतह की क़यादत को मिलने वाली सजाओं के बाद बानी PTI भी ऐसे मुकदमात का सामना कर सकते हैं। पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं के बानी के मुलविस होने के बारे में बयानात मौजूद हैं। फैज़ हमीद के सजा फैसले के बाद सियासी तज्ज़िया निगार बानी PTI और फैज़ हमीद के इन वाक़यात के पीछे बाहमी गठजोड़ का जिक्र भी कर चुके हैं। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक आने वाले दिनों में मज़ीद फैसले भी मुतवक्के हैं। और अभी आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी 20 से 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा करेंगे। सदर ममलकत को दौरे की दावत इराक के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद ने दी है। उमर फारूक की रिपोर्ट। सदर आसिफ अली जरदारी अपने दौरे के दौरान इराक की क़यादत से आला सतह मुलाकातें करेंगे, जिनमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के आम शोबों बशमूल तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तामीर नौ, अफरादी कुव्वत, टेक्नोलॉजी, तालीम और अवामी रवाबित में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर गौर किया जाएगा। मुलाकातों में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर के साथ कसीरुल-जेती फोरम्स पर ताउन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर ममलकत का दौरा पाकिस्तान और इराक के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, शिराकतदारी के नए मौक़े तलाश करने और अवामी रवाबित बिलखुसूस मजहबी सियाहत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का बाइस बनेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा पाकिस्तान की इराक के साथ मुसलसल सिफारती वाबस्तगी, नतीजा खेज और तज़वीराती शिराकतदारी के फ़रोग़ की अज़्म की अक्कासी करता है, जो इराक के इस्तेकाम और तरक्की के साथ खित्ते में अमन और खुशहाली में मुआविन साबित होगा।
उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बांग्लादेश में भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा करने वाले तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा कल जोहर के बाद बांग्लादेशी पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी और उनकी तदफीन कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद के करीब होगी। कातिलाना हमले में शहीद होने वाले उस्मान हादी की मैयत आज सिंगापुर से ढाका पहुंची। उस्मान हादी की शहादत के बाद मुल्क भर में शदीद हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल मुजाहिरीन ने भारतीय सफारत खाने समेत भारत नवाज मीडिया इदारों पर हमला कर दिया। धान मंडी में शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजरातिश कर दिया। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कल कौमी शोक का ऐलान किया है। तफसील जानते हैं राना शहजादुल की इस रिपोर्ट में। আমাদের হাদি ভাই এক দীর্ঘ কালচারাল লড়াই করেছে, যে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার ওই কুচেটে কষে মোদির বুকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আমরা চাই মোদির বুকে আগুন বারবার লাগে। बंगाली तालिब-इल्म रहनुमा उस्मान हादी को 12 दिसंबर बांग्लादेश में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के दिन सफर के दौरान ढाका में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो एक मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। चेहरा ढांपे हुए नामलूम हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। ताहम गुज़श्ता रोज जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। बांग्लादेश में उस्मान हादी पर होने वाले हमले के बाद से ही शदीद गम व गुस्सा पाया जाता था। रात जैसे ही उनकी मौत की खबर का ऐलान हुआ तो हजारों अफराद ढाका में सड़कों पर निकल आए। We are against such political assassination and we are against such operations. Indian interference, we have seen that they are sheltering killer Hasina even after the ICC announcement of capital punishment. They are not even giving her back and they are sheltering other criminals. We are seeing that Usman Hadi Bhai, he was the spokesperson of Inqilab Moncho and he was very vocal about Indian oppression and aggression again and again. So one of his political or cultural agenda was to talk about Indian aggression. मुश्तिल मुजाहिरीन ने भारतीय सफारत खाने समेत अखबार दी डेली स्टार और कई दूसरे भारत नवाज मीडिया इदारों पर हमला कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो बांग्लादेश के दाखिली मामलात में मुलव्वस मोदी सरकार को इबरत का निशान बना देंगे। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उन्हें गुजरात का कसाब करार दे दिया। मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और शेख मुजीब के घर को इनकलाब कल्चरल सेंटर बनाने का ऐलान किया और कहा कि अब शेख मुजीब के घर की एक ईंट भी नहीं बचेगी। उस्मान हादी सिर्फ मुल्क के लिए बिला तकल्लुफ इंडिया के खिलाफ आवाज उठाती रही। इंडियन सब पॉलिसी और बांग्लादेश के इंटरनल आर्म फोर्स से लेके फौजी तक जिनके साथ इंडियन कनेक्शन था, उसके खिलाफ हमेशा वो आवाज उठाते रहे थे। इंडियन जो हिपोक्रेसी और डोमिनेशन है, इससे बांग्लादेश हमेशा आजाद रहे। बांग्लादेश जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 32 साला शरीफ उस्मान हादी भारत के शदीद तरीन नाकदीन में शुमार होते थे। हादी ने अपनी मौत से कबल सोशल मीडिया पर बताया था कि उन्हें अवामी लीग के हामियों की जानब से धमकियां मिल रही हैं। राना शहजादुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नौजवान खवातीन को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए तालिबात में यौम वालिदैन और 5वीं पासिंग आउट की तकरीब की तफसील शाहरुख शफी से। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए तालिबात शहीद बेनज़ीराबाद में मुनक्कदा 5वें पासिंग आउट परेड और सालाना यौम वालिदैन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज है जो बच्चियों को तालीम, नज़्म ज़ब्त और क़यादत की तरबियत के जरिए बाइख्तियार बनाने के लिए कायम किया गया है। उन्होंने कैडेट्स की मेहनत, उसातिज़ा की रहनुमाई और हुकूमत सिंध के ताउन को सराहते हुए कहा कि पूरे मुल्क की तरह सिंध की बेटियां भी मुसलसल इम्तियाज के साथ आगे बढ़ रही हैं। खातून अव्वल ने कहा कि बेपनाह चैलेंजेस से इबारत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी हमारे लिए मशाल राह है। Daughters of the nation must never be confined by limits. They must lead, excel and contribute to Pakistan with full confidence and pride. What we witnessed this morning was much more than a parade. It was a display of discipline, excellence, and determination.
I congratulate you wholeheartedly. You have shown through your perseverance, your training, and your spirit that the daughters of Sindh continue to rise with distinction. इससे कबल खातून अव्वल ने कॉलेज में नौ तामीर शुदा जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मार्च पास्ट, पीटी और जिम्नास्टिक मुजारू और कराटे शो का भी मुशाहिदा किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों में कॉलेज क्रीसेंट और इनामात तकसीम किए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए एक शफाफ पॉलिसी टैक्स फ्रेमवर्क नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और वेंचर कैपिटल फर्म्स पर मुश्तमिल वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे की तरक्की बिलखुसूस टेक्नोलॉजी से मुंसलिक शोबों की भरपूर हौसला अफजाई करेगी। वफ़द ने टेलीकॉम टावर्स की तामीर, मिल्कियत और ऑपरेशन से मुतालिक कारोबारी मॉडल्स, ऑपरेशनल उमूर और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पांडा बॉन्ड प्रोग्राम का मजमूई हजम तकरीबन $1 अरब होगा, जबकि पहले मरहले में $250 मिलियन के मसावी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पांडा सीरीज़ 2 के तहत आइंदा इजरा की तैयारियाँ भी शुरू कर दी गई हैं, जिससे चीनी रेगुलेटरी हुक्काम मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। इजलास के शुरका ने बताया कि मौजूदा मार्केट हालात साजगार हैं और हुकूमती इस्लाहात, माशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद और हुकूमती बॉन्ड में सरमायाकार में दिलचस्पी बरकरार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों और पैरामिलिट्री एहलकारों ने इस्लामाबाद और कोलगाम अजला में श्रीनगर, जम्मू शाहरा के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी का अमल शुरू कर दिया है। शाहरा पर इजाफी चेक पोस्टें भी कायम की गई हैं, जिन पर गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ली जा रही है। भारतीय फोर्सेस ने जम्मू खिते के राजौरी, सांबा, कठुआ, उधमपुर और डोडा अजला में भी तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नई दिल्ली धमाके के झूठे मुकदमे में एक और कश्मीर नौजवान यासिर अहमद डार को गिरफ्तार कर लिया। यासिर डार मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां का रहायशी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब सरेआम उतारने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा, कुछ सियासी शख्सियात और भारतीय मीडिया वाकई की मजम्मत के बजाय हिजाब को निशाना बनाकर असल मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मीर वाइज ने बिहार के वज़ीर आला से अपने नामुनासिब रवैये पर फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला पुलवामा में भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बागात की जरखेज अराजी की मुंतकली की खबरों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे कई खानदानों का जरिया आमदन मुतासर होगा। ये बागात लोगों की रोजी रोटी का वाहिद जरिया है। मुतासिब भारतीय हुक्मरान मुसलमान अक़लियत के खिलाफ अब खुलकर सामने आ गए हैं। हिंद इंतहा पसंद योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद ने बिहार के वज़ीर आला की मुसलमान खातून डॉक्टर के साथ मज़मूम हरकत की हिमायत की है। संजय निषाद के खिलाफ औरत की तज़लील पर FIR दर्ज करने की दरख्वास्त देने वाली मुसलमान खातून रहनुमा समिया राना को लखनऊ पुलिस ने घर में नज़रबंद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लखनऊ में समाजी वादी पार्टी के रहनुमा समिया राना ने वज़ीर आला नीतीश कुमार और काबीना के वज़ीर संजय निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। समिया राना ने कहा कि इस तरह का अमल एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। उनके मुताबिक आईनी ओहदे पर फाइज शख्स का कैसा बर्ताव न सिर्फ काबिल एतराज़ है, बल्कि इससे दूसरों को भी इस तर्ज अमल की तरकीब मिलती है। भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाले ज़ालिमाना और तौहीन आमेज़ सलूक के बायस एक बार फिर दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सरकारी तकरीब के दौरान मुसलमान खातून डॉक्टर का ज़बरदस्ती नकाब उतारकर उसकी इज्जत नफ्स और मजहबी शनाख्त को पामाल किया। नीतीश कुमार के इस शर्मनाक और घटिया फेल के बाद आलमी सतह पर भारत के खिलाफ शदीद मजम्मत और लान तान का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी अवाम ने भारत की मजहबी इंतहा पसंदी और अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लकी मरवत, बनू, केच, चारसदा, नोशकी, योब और कोहाट समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात, ताजरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने भारतीय वज़ीर आला के शर्मनाक इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर बिहार के वज़ीर आला के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज के दौरान भारतीय क़यादत, हिंदुत्वा सोच और रियासती सरपरस्ती में जारी मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए गए। मुकर्रीन ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला का मुसलमान ख़वातीन के पर्दे के बारे में ये शर्मनाक
फेल उनकी बदतरीन जहनीत और इखलाकी पस्ती को बेनकाब करता है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इस गैर इंसानी सलूक के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करे और भारत में मुसलमानों के हुकूक का दिफा करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भी वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि किसी अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज़्ज़त, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इक़दामात ना सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं बल्कि माशरे में खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और जबर के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त भारतीय रियासत और उसकी क़यादत पर आयद होती है। कवायद ज़वाबित और इस्तेहकाक के बारे में सैनेट की मजलिस कायमा ने सैनेट के कवायद 166 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मजलिस कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन सेनेटर सैयद वक़ार मेहदी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें सेनेटर सैयद मसरूर अहसन की तहरीक इस्तेहकाक पर गौर किया गया। मुताल्लिक़ा अफसर की गैर मशरूत माज़रत के बाद मुहर्रिक के मुतमईन होने पर इजलास ने तहरीक निपटा दी। कमेटी ने तलबा के खिलाफ FIR के अंदराज के मामले पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हुकाम को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने सेक्टर G15-3 में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। डायरेक्टर जनरल फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की हिदायत की रोशनी में काबिज़ीन से बड़ी तादाद में अराजी को वागुजार करा लिया गया। ऑपरेशन डेप्यूटी कमिश्नर हाउसिंग अलमास सबी साकिब और डायरेक्टर सिक्योरिटी कर्नल अजहर सईद की निगरानी में किया गया। इंतजामिया पर उम्मीद है कि अराजी के बकिया मसाइल के हल के बाद सब सेक्टर G15-3 के तमाम अलॉटीज़ को बहुत जल्द कब्जा दे दिया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने इस अज़्म का अदा किया कि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, कानून की अमलदारी और अलॉटीज़ के हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि अंडर-19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। दुबई में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी। बारिश के बायस मैच को 27 ओवर्स तक महदूद किया गया। बांग्लादेश की टीम 26.3 ओवर्स में 121 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ 3 बैटर्स डबल विकेट तक पहुंचने में कामयाब हुए। समीउन बशीर ने 33 और अजीजुल हकीम ने 20 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुबहान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हुज़ैफा अहसन ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ 16.3 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर समीर मिन्हास 69 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त बल्लेबाज रहे। उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके लगाए। उस्मान खान ने 27 रन स्कोर किए। अहमद हुसैन 11 रन पर नॉट आउट रहे। अंडर-19 एशिया कप PTV स्पोर्ट्स और PTV नेशनल पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बिग बैश लीग में चौकों और छक्कों की बारिश सबसे बड़े हदफ के कामयाबी से ताकुब का रिकॉर्ड बन गया। लीग के छठे मैच में ब्रिस्बेन हीट ने पर्थ स्कॉटिश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हरा दिया। ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में पर्थ स्कॉटिश ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 257 रन स्कोर किए। ओपनर फिन एलन ने 38 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 8 छक्के और 3 चौके शामिल थे। कूपर कॉनली 37 गेंदों पर 77 रन स्कोर करने में कामयाब रहे। उन्होंने 6 छक्के और 6 ही चौके लगाए। ब्रिस्बेन हीट की जानिब से ज़ेवियर बार्टलेट ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। शाहीन शाफरीदी, जैक वाल्डरमुड, लियाम बास्केट और मैथ्यू कॉनेमन के हिस्से में 1-1 विकेट आई। अहम खबर आपको देंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला बोया में फित्तान खारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस पर कैंप पर हमले की कोशिश नाकाम। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक मस्जिद समेत मुल्हिका शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 15 शहरी इसमें शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत और पेशावराना मुहारत का मुजाहरा करते हुए 4 खारजियों को जहन्नम रसीद कर दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला बोया में फित्तान खारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार से टकरा दी।
और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।